دوستو، ملت اسلامیہ کے لیے، ریاست کرناٹک کے لیے یہ ایک سانح عظیم ہے۔ ریاست کرناٹک کے امیر شریعت دارالعلوم سبیل الرشاد کے محتمم مولانا صغیر احمد رشادی انتقال کر گئے ہیں۔ آج بتاریخ 12 جنوری صبح سویرے بنگلور کے ناگوار میں موجود اپنی رہائش گاہ میں آپ نے آخری سانس لی۔ یقیناً ریاست کرناٹک اور ملت اسلامیہ کے لیے یہ ایک بڑا نقصان ہے، ایک بڑا خسارہ ہے۔ دارالعلوم سبیل الرشاد کے احاطے میں موجود ایوان ابو سعود میں آپ کی جسد خاکی کو آخری دیدار کے لیے رکھا گیا ہے۔ کثیر تعداد میں لوگ سبیل الرشاد پہنچ کر امیر شریعت کا آخری دیدار کر رہے ہیں۔ علماء کرام، دینی مدارس کے طلباء کی ایک بڑی تعداد یہاں پہنچ کر آخری دیدار کر رہی ہے، تو دوسری طرف سیاسی، سماجی و ملی شخصیات یہاں پہنچ کر آپ کا آخری دیدار کر رہے ہیں۔ عوام الناس کی بھی کثیر تعداد یہاں پہنچ رہی ہے۔ ریاستی وزیر BZ ضمیر احمد خان، رکن اسمبلی رضوان ارشد، رکن کونسل نصیر احمد، KPCC کے وائس پریزیڈنٹ عبید اللہ شریف و دیگر اہم شخصیات اور کئی اہم شخصیات نے سبیل الرشاد پہنچ کر حضرت امیر شریعت کا آخری دیدار کیا۔ دوستو، جیسا کہ اعلان ہو چکا ہے، کل یعنی 13 جنوری بروز منگل صبح 10 بجے امیر شریعت مولانا صغیر احمد رشادی کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ نماز جنازہ کے لیے بڑے پیمانے پر انتظامات کیے گئے ہیں۔ بڑی تعداد میں پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے۔ دارالعلوم سبیل الرشاد کے احاطے میں نماز جنازہ صبح 10 بجے ادا کی جائے گی اور اس کے بعد سبیل الرشاد کے احاطے میں ہی آپ کی تدفین عمل میں آئے گی۔ تو چلیے دوستو، اس موقع پر جانتے ہیں ملی، سماجی و سیاسی شخصیات کے کیا احساسات، کیا تاثرات ہیں۔ جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔ امیر شریعت کرناٹک نہیں رہے، بڑی افسوس کی بات ہے۔ تقریباً 1.5-2 مہینے کافی بیمار تھے اور ہاسپٹل میں بھی تھے، گھر میں بھی علاج ہو رہا تھا۔ اب تقریباً 60 پر 6 سال مدرسے میں رہ کر، مدرسے سے تعلیم پا کر، خود مدرسے میں استاد کی حیثیت سے کام کر کے محتمم ہو کر پھر امیر شریعت کا، تو تقریباً 60 پر 6 سال ان کی خدمات اس مدرسے میں ہیں اور پورے عالم اسلام میں ہے، اور خاص کر کرناٹک کے اندر ہر جتنے بھی مدارس ہیں، مدرسے ہیں، سب کے محتمم تھے۔ اور امیر شریعت کے ناطے جلدی آ جائیں، امیر شریعت کے ناطے تک مستورات کے لیے وقت دیا جائے گا، جو بھی فرائض جلدی آ جائیں۔ جو بھی فرائض تھے اس کا بالکل انجام کرتے رہے، اور ایک ایسی شخصیت تھی، کبھی بھی کوئی دکھاوا نہیں تھا، کبھی بھی کوئی مطلب باہر لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، ملنساری اور بڑی ہیوملٹی کے ساتھ، یہ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ لوگوں سے ملا کرتے تھے۔ جو بھی مطلب مسائل قوم کے آتے تھے تو پہلے آگے آ کر اس کے بارے میں کوشش کرتے، اور ہم لوگوں کو سب بات کرتے، ہم لوگوں کو سب بلواتے تھے اور مسائل کو حل کرنے کی ہر طرح کوشش کرتے تھے۔ بہت بڑا، خاص کر مذہبی طور سے، اور بہت بڑا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا جو بھی ہے ان کا کوئی اجر بھی دے اور ان کے درجات کو بلند بھی کرے، اور ان کے مقام میں دوسرے آدمیوں کو بھی لانے کی کوشش کرے۔ فرمائے صاحب، آج امیر شریعت کا انتقال پورے ریاست کے لیے دکھ اور درد کی خبر ہے، دکھ اور درد کی بات ہے۔ السلام علیکم۔ آج بڑی دکھ اور افسوس کے ساتھ جو ہمارے امیر شریعت حضرت مولانا صغیر احمد رشادی صاحب کا جو انتقال ہو گیا، اب تمام جانتے ہیں چند مہینوں سے حضرت بیمار تھے۔ آج فجر کا اذان کے وقت میں ان کا روح نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں داخل کریں۔ دوسرا،
बहुत बड़ी उम्मत को एक लाश है। हजारों तालिबा उनके साथ पढ़े थे। अभी हजरत से बात हो रही थी, उनका जो भी शागिर्दों से, फैमिली से बात हो रही थी। हजरत ने 57 ईयर्स इधर सर्विस किया है। जब एक तालिबा होकर इधर आए थे इस मदरसे में, उसके बाद फारिग होने के बाद अब तक इधर ही उनका जो भी सर्विसेज था, शेखुल हदीस थे। उम्मत के लिए बहुत बड़ा लॉस है, यही मैं कहना चाहता हूँ। शुक्रिया। आज एक गमगीन दिन है, एक इल्म दीन का एक चिराग गुरूब हुआ है। देखिए, हजरत मौलाना इंशाअल्लाह साहब अभी नमाज असर भी बार अभी मस्तूरात के लिए वक्त दिया गया है। एक अजीम शख्सियत थी। आप जो है दारुल उलूम सबीलुर रशाद के मोहतमिम रहे, कर्नाटक के अमीर शरीयत रहे। आपके गुजरने के बाद जो है एक बहुत बड़ा खला पैदा हो गया है कर्नाटक में। बहुत बड़े आलिम दीन थे, बहुत ही अजीम शख्सियत थी। जब भी किसी से मिलते तो मुस्कुराते रहते थे, हमेशा बड़ी खुशी से सबको बातचीत करते थे। मैं देखा जब यहाँ दारुल उलूम सबीलुर रशाद में मस्तूरात के लिए थोड़ा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जब मीटिंग हो रही थी, उस वक्त उनकी तबीयत नासाज थी। उसके बावजूद रोज़ाना यहाँ आते और हम सबको जो है अपने ज़रीन मशवरे से नवाजते थे। शायद इस वक्त कर्नाटक में जो है आप जैसी शख्सियतें ढूंढने से भी मिलना मुश्किल है। अचानक आपके कंधों पर अमीर शरीयत की जिम्मेदारी डाली गई, तो आज इस जिम्मेदारी को हम देखते हैं कि आपने बखूबी तौर पर अंजाम दिया। गुजारिश है जो गेट के जी हाँ, यकीनन हज़रत लगा देते। मुफ्ती अशरफ अली साहब रहमतुल्लाह अलैह के बाद जो है आप अमीर शरीयत बने, और जिस तरीके से हज़रत मुफ्ती अशरफ अली साहब अमीर शरीयत के ओहदे को निभा रहे थे, उसी तरीके से आपने भी निभाया। और कौम की बहुत आपको फ़िक्र रहती थी। जब भी कोई मसला पेश आता तो वो जो है सबको फ़ोन करके बुलाते और मशवरा करते कि कैसे करना है, क्या करना है। ये मैं समझता हूँ कि बहुत कम ऐसी शख्सियत इस वक्त हमारे बीच मौजूद है। ये शफीउल्लाह साहब, हज़रत अमीर शरीयत की शख्सियत को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हज़रत अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद ख़ान साहब रशादी, उनके दौर में जितने भी साल वो अमीर शरीयत रहे, माशाअल्लाह सारे कर्नाटक के मुसलमानों की रहनुमाई फरमाते रहे। और जब जब सारे कर्नाटक के मुसलमानों पर जब जब कभी कोई मसाइल पेश आए या मुसीबतें पेश आई, उस वक्त हमेशा एकदम चौकन्ना और वक्त पर डिसीशन लेकर और सबकी रहनुमाई फरमाते रहे, जिसकी वजह से सारे कर्नाटक की आवाम बड़ी खुश थी। अब इस मौके पर तकरीबन सारी आवाम गमज़दा है और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें इसका अजर अज़ीम अता फरमाए और यहाँ कर्नाटक के मुसलमानों को एक बहुत अच्छा नेमुल बदल भी अता फरमाए। हम देखते हैं सैयद शाहिद साहब हज कमेटी के मेंबर मौजूद हैं। हम देखते हैं कि साबिका बीजेपी हुकूमत हो या कोरोना का दौर हो, आपने बेहतरीन तरीके से रहनुमाई फरमाई, काफ़ी सारे तशवीशात थे, उसे दूर करने की कोशिश की। हज़रत अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद ख़ान रशादी रहमतुल्लाह अलैह का विसाल तमाम मिल्लत इस्लामिया के लिए बहुत ही नुकसान है, खुसूसन रियासत कर्नाटक के लिए बहुत ही नुकसान है। मैं बहैसियत जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल का मैं हज़रत के लवाहिकीन से, शागिर्दान से और मुतवस्सिलीन से मैं जो है ताज़ियत अदा करता हूँ। आप जो है ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल कर्नाटक के सरपरस्त भी रहे, हमेशा जो है मिल्ली काउंसिल की रहनुमाई करते रहे। हमेशा हर वक्त जब भी उम्मत पर कोई आफत आती थी, कोई परेशानी होती थी, आप जो है बीमारी के बावजूद जो है आप मीटिंगों में शिरकत करते थे और बराबर जो है उम्मत की मिल्लत की रहनुमाई करते थे। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हज़रत के दर्जात को बुलंद फरमाए और हम तमाम पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वाकई बहुत ही रंज और दुख की बात है कि हमारे हज़रत अमीर शरीयत इस दुनिया से रुखसत हो गए। बहुत बड़ी शख्सियत थी, अल्लाह का फजल है, हमें उनके साथ उठना बैठना, उनके साथ अच्छा बड़ा ताल्लुक़ था। कामों के सिलसिले में हमें बड़ी हिम्मत अफजाई करते थे, दुआएं देते थे।
मैं अल्लाह के पास दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला एक ऐसा नेमल बदल अता फरमा जो हज़रत के कायम मुकाम हो। यही दुआ है मेरी। लेकिन बहुत ही आपकी सरपरस्ती में जो है तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस बड़े बड़े इजलास हुए और जिसमें आप भी शामिल रहे इन कॉन्फ्रेंसों के इनेकाद में। जी हाँ, तहफ़्फ़ुज़ शरीयत में तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का जो प्रोग्राम चला, उसके बेंगलोर के एक कर्नाटका के कन्वीनर थे हमारे हज़रत मौलाना मुफ्ती साहब अमीर शरीयत, और उनके अंडर में हमारे इफ्तिखार साहब थे, मौलाना मकसूद साहब थे। उसके बाद हमको बनाया गया था कन्वीनर। तो जब हम उनसे काम करे बड़े इत्मीनान के साथ, यानी बार बार मशवरे होते, बड़े अच्छे शोर से नवाजते थे और बड़ी हिम्मत के साथ हम लोग काम करते थे। वो दिन अभी बहुत याद आते हैं। आज तो सारा दिन वही सोचता रहा कि कैसे हज़रत हमारे चले गए। अल्लाह की मर्ज़ी थी और अल्लाह की मर्ज़ी पर हमको राज़ी होना है। बस दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला बहुत बड़ा दर्जा, बुलंद दर्जा उनको अता फरमाए। काफ़ी बड़ी तादाद में उलमाए कराम भी यहाँ पर आ रहे हैं और आपका आखिरी दीदार कर रहे हैं। फरमाइए किस तरह आप शख्सियत हज़रत अमीर शरीयत की शख्सियत को देखते हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अमीर शरीयत रहमतुल्लाहि अलैह यकीनन सबीलुर रशाद के बड़े मुमताज़ तालिब इल्म थे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जय्यद उस्ताद थे। हज़रत जो है यहाँ के शेखुल हदीस और मुहतमिम रहे। हज़रत का रुख़सत फरमाना हम सब के लिए यकीनन बहुत ही सदमे का दरिया है। हम पर सबीलुर रशाद में ये तीसरा बल्कि यूँ समझिए चौथा वक्त है कि हम अपने आप को समझ रहे हैं कि हम यतीम हो चुके हैं। सबसे पहले बड़े हज़रत रहमतुल्लाह अलैह, उसके बाद हज़रत मौलाना नय्यर रब्बानी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उसके बाद हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अशरफ अली साहब रहमतुल्लाह अलैह, फिर अमीर शरीयत हमारे दरमियान रुखसत हुए। हम अपने आप को यतीम की तरह महसूस कर रहे हैं। दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हज़रत को गरीक़ रहमत फरमाए और अल्लाह ताला हज़रत की क़ब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हज़रत अमीर शरीयत का इंतकाल न सिर्फ हमारे लिए बाइस गम है बल्कि पूरी मिल्लत इस्लामिया के लिए एक बहुत बड़ा खसारा है। हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला इनके हक़ में और हम तमाम मिल्लत इस्लामिया के हक़ में सब्र जमील अता फ़रमाए और मिल्लत के लिए आइंदा हमारे लिए ऐसे ही अमीर हमारे लिए अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इस वक्त दारुल उलूम सबीलुर रशाद के असातिज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। फरमाइए, एक बड़ा नुकसान है, एक बड़ा दुख का दिन है आज। जी हाँ, सबसे बड़ा दुख का दिन है। दुआ फरमाए कि अल्लाह हज़रत फजल से फरमाए, अल्लाह मार सके। कैसा मिजाज रहा, जैसा कि आपने बहुत करीबी से देखा हज़रत अमीर शरीयत को? हज़रत अमीर शरीयत रहमतुल्लाह अलैह तकरीबन दारुल उलूम सबीलुर रशाद से तालीमी ज़माने से लेकर अब तक 55 साल हज़रत मदरसे ही में गुजारा हज़रत ने, और शुरू से लेकर अब तक हमेशा मुनकसिरुल मिजाज, मुतवाज़े, बड़ों की कदरदानी, हज़ारों तलबा के आप उस्ताद दारुल उलूम सबीलुर रशाद के शेखुल हदीस रहे। हज़रत की जुदाईगी पर ये सिर्फ़ इदारा ही नहीं और रियासत ही नहीं, पूरे मुल्क में गम का और रंज का माहौल है। आपसे हज़रत के दरजात की बुलंदी के लिए दुआओं की गुजारिश है। अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी के इंतकाल के बाद एक गम का पहाड़ टूट पड़ा है। दारुल उलूम सबीलुर रशाद में आपके आखिरी दीदार के लिए इंतज़ामात किए गए हैं।
है।